education have no boundaries, and Australia-India education and skill counselling is proving in a better way. The opening of 2 Australian universities to Gift City, Gandhinagar, will impact the education level to India. Here we have the Education Minister of India, Mr. Dharmendra Pradhan ji with us, and Education Minister of Australia, Mr. Jason Clear with us. Sir, welcome to DD News. First, sir, I would like to ask you, what you think, how India and Australia can support each other in developing new skills, technologies, etc. Well, this is a historic day. These are the first 2 international universities to be given approval to establish a campus in India, Wollongong University and Deakin University, and I hope that they are the first of a number. But the truth is that our relationship is long and strong. Australian universities and Indian universities have been working together for many decades, helping to educate people in both countries and doing lots of research as well. There are more than 450 agreements between our 2 universities to help to develop new knowledge. This is the next step in building a stronger, deeper relationship between our 2 countries. सर, आपसे मैं ज़रूर ये जानना चाहूँगी, क्योंकि ये कहा जाता है कि एजुकेशन किसी भी देश के विकास को बढ़ाने के लिए एक आगे की एक सीढ़ी होती है. तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो रिसर्च कोलैबोरेशन हो रहा है, वो उसके क्या की पॉइंट्स रहने वाले, क्या की एरियाज रहेंगे? देखिए, आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध के लिए एक नई ऐतिहासिक दिन है. अभी तक पिछले 3-4 दशकों में भारत और ऑस्ट्रेलिया की एजुकेशन सेक्टर में बहुत गहरा संपर्क बन चुका है. जिसे मिनिस्टर क्लेयर जी ने कहा, भारत और इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ और ऑस्ट्रेलिया की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की 450 से ज़्यादा रिसर्च MOU है, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम है, फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम है, कोलैबोरेशन है. लेकिन आज एक नया इतिहास रचा गया. पहली बार हमारे देश में गुजरात की गिफ्ट सिटी में ऑस्ट्रेलिया की 2 प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जो सारे मानकों में बहुत ऊंचा स्थान पे हैं, डीकेन यूनिवर्सिटी जो लगभग 50 साल से ऑस्ट्रेलिया में है, जिनके संबंध भारत में 30 साल से हैं, और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी जो लगभग उसी 50 साल भी हो चुका है जिसको. ऐसे 2 यूनिवर्सिटी अपना कैंपस खोलने का फैसला किया. ये फैसला दोनों प्रधानमंत्रियों के निर्णय के उपरांत हुआ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के एक्सीलेंशियल अल्बनीज, इन दोनों के निर्णय के कारण आज ये संभव हो पा रहा है. आपने जैसे कहा, ये दोनों 2 देशों के बीच में नॉलेज ब्रिज के काम करेगा. और 21st century is going to be the knowledge based society. It should be knowledge based economy. So this kind of bridge between both the countries, between both the democracies, will certainly create a new ecosystem of knowledge and service-based economy. Sir, I would like to ask you, what is your vision for the future of India-Australia skill and education collaboration? Well, first, international education isn't a one-way street. It doesn't have to be. Over the last 20 years, something like 400,000 young Indians have made their way to Australia to get an education, to get a degree. There's about 100,000 Indians in Australia today doing that. But not every young Indian will be able to afford to go to Australia to get a degree. These new university campuses provide an opportunity for more Indians to study at an Australian university but study here in India for half the price. So that's part of it. But the other part of it is what Dhamandra's talking about building that research collaboration in areas of key interest for both countries. And an area that we spoke about yesterday was in critical minerals and rare earths, in AI. A classic example is this: Australia is the largest producer of lithium, the mineral you need to produce batteries. India is arguably going to become the biggest producer of electric vehicles. I was told yesterday in one of our conversations, potentially producing 1 million vehicles a month in the very near future. That makes a lot of sense that our countries can collaborate more closely here, and that's not just government to government, that's universities working together and businesses working together. सर, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि इंडिया का जो एक एफर्ट है स्किल्ड वर्कफोर्स को डेवलप करने का,
उसमें ऑस्ट्रेलिया का रोल किस तरीके से सर होगा? देखिए, ऑस्ट्रेलिया कई सेक्टर में आपने दुनिया में एक नया स्टैंडर्ड्स खड़ा किया, विशेष करके जैसे मिनिस्टर क्लेयर ने कहा कि मिनरल एंड क्रिटिकल मिनरल में ऑस्ट्रेलिया ने स्किल डेवलपमेंट में बहुत उच्च स्तर तक पहुंचा है। एग्रीकल्चर में, वाटर मैनेजमेंट में, एआई में, हेल्थ केयर सिस्टम पे ऑस्ट्रेलिया और भारत की संबंध रिसर्च से लेकर स्किल डेवलपमेंट, स्किल कैपेसिटी बिल्डिंग तक पहली बार हमारी ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन एंड स्किल काउंसिल की मीटिंग हुई। कल इसका पहला मीटिंग हुआ, उसमें ऑस्ट्रेलिया की दो आदरणीय मंत्री भी रहे, स्वयं जेसन क्लेयर साहब यहीं रहे और वहाँ के स्किल मंत्री वो कॉर्नर भी रहे साथ में। पिछले दिनों में हमारी एक्सीलेंसी बटलर जो वहाँ का स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके साथ भी मिलना हुआ था। एक मोबिलिटी की एग्रीमेंट दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच में हुई है। भारत से नौजवान ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया की स्किल स्टैंडर्ड्स के साथ खुद को अलाइन करेंगे, वहाँ उनकी मैन पावर की रिक्वायरमेंट में कुछ साल काम करेंगे, उस प्रोसेस को हमारे देश में लेके लौट के आएंगे। इसके कारण हमारे देश में जो एक डेवलप्ड नेशन बनने की जो हमारी एक टारगेट है, 2047 तक भारत आने वाले 25 साल के अंदर विकसित भारत होगा। विकसित भारत में हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचेंगे। उसको पहुंचने के लिए हमारा मूल शर्त रहेगा हमारी देश की नौजवानों की कैपेसिटी को और ऊंचा करना। भारत दुनिया की युवा देशों में एक है, उस युवा शक्ति को ज्ञान शक्ति में परिवर्तित करना हम जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उल्लेख किया गया है, हमें हमारी शिक्षा को इंटरनेशनलाइज करना है, वैश्विक करना है। आज ऑस्ट्रेलिया कई मामलों में हमारी नेचुरल फ्रेंडशिप है उनके साथ, उसको लिवरेज करते हुए ये जो हमने पहल किया है, स्किल केवल नहीं, रिसर्च, इंस्टीट्यूशनल नेटवर्किंग, ये सारे क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की बहुत अच्छे संबंध बन रहा है। Sir, I would like to ask you how India and Australia can come together and ensure the next opportunities, next challenges for your workers. Well, education changes lives and it also changes nations. Australia knows that because that's our story. When I was a little boy, only about 30% of children finished high school. Now it's about 80%. And when I was young, only about 7% of people had a university degree. Now it's almost 50%. That's transformed the Australian economy. It's transformed us as a country. And so when I look at what Prime Minister Modi is seeking to do with the national education policy, implemented with the leadership of my friend Dharmendra Pradhan, I can see what we have done in Australia. And truth be told, that's a story that's only half told in Australia. More and more jobs in Australia require a university qualification. And so we need to make changes in Australia to help set us up for a future where more jobs require more skills. That's true in India as well. And the transformational power of education you can see happening in India today, in your schools, in your universities, and that will only grow in the years ahead. I think there's a real opportunity for Australia to help. When Dharmendra, when you were in Australia last year, you talked to Australia about the national education policy and what you hope to achieve, and sought the support and the partnership of Australia to be part of this great ambition. And the fact that we have, this is my second visit to India this year. I brought half of Australia's universities in March. I brought the other half today on this visit. The fact that they have come shows that they see a great opportunity to work in partnership together here to help to transform India and all of the skills that come with the transformation of an education system help to set up and change a country for the better. Yeah. सर, न्यू इंडिया और डेवलपिंग इंडिया में हमेशा शिक्षा को प्राधान्य दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हमेशा इसको बहुत आगे बढ़ाया है। इस कॉपरेशन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या सा विजन है? देखिए, गिफ्ट सिटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ही विजन है। गिफ्ट सिटी में आज जैसे हमने ये दो यूनिवर्सिटी को हम लोगों ने आज प्रत्यक्ष विजिट किया, डीकेन और उलुंगंग, दोनों ने क्या कोर्स चलाने वाले हैं। इसमें
डीप डाटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स एंड साइबर सिक्योरिटी जैसे आज आधुनिक दुनिया में जो अर्थनीति बन रहा है, जो डिजिटली ही कनेक्टेड है, ऐसे सारा विषयों में ही आज यहाँ शिक्षा दिया जाएगा। स्टार्टअप्स भी ऐसे दोनों ने बनाने वाले हैं, उस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कोर्स भी चलाएंगे। आज यही प्रधानमंत्री जी की विजन है, विश्व की आवश्यकता के हिसाब से शिक्षा को उसमें उस ढांचे में डालना। आज उसकी प्रत्यक्ष एक इकोसिस्टम बनाया गया है। विदेश की यूनिवर्सिटी आएंगे तो उनको ईज ऑफ ऑपरेशन की भी मौका देने की आवश्यकता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की मौका देने की आवश्यकता है। ये सिर्फ कहने से नहीं होता है, सिर्फ ये स्पीच की पार्ट नहीं होता है, इसको करना पड़ता है। आज प्रधानमंत्री जी ने नया भारत बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए रिफॉर्म को अपनाया है। कंटिन्यूअस रिफॉर्म रिफॉर्म रिफॉर्म, उसी से परफॉर्मेंस बढ़ती है, उसी में वेल्थ क्रिएशन होती है और उसकी सबसे ज़्यादा लाभ देश की यूथ पावर को ही मिलता है, यंगस्टर्स को ही मिलता है। देखिए, इस यूनिवर्सिटी में आज अफोर्डेबल एजुकेशन एनईपी ने कहा है। इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से जैसे हर एक साल 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट भारत की बिलियंस ऑफ डॉलर खर्चा करके, लाखों करोड़ रुपया खर्चा करके ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाते हैं। उसकी आधे खर्चे में भी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी अपने फैकल्टी, अपने स्टैंडर्ड्स के साथ भारत में पढ़ाएंगे। और अब भी इस यूनिवर्सिटियों में, जैसे मिनिस्टर क्लेयर ने मेरे को आश्वस्त किया है, 80% लोकल इंटेलेक्चुअल्स ही फैकल्टी करके रहेंगे। उनको ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी की इकोसिस्टम पे वो रहेंगे, लेकिन होंगे तो भारतीय। इसीलिए नया रोजगार सृजन, ग्लोबल स्टैंडर्ड की एजुकेशन, इमर्जिंग एरिया में एजुकेशन, यही नया भारत की रोड मैप है। और प्रधानमंत्री जी ने आज गुजरात में उसको रियलाइज कराते हुए, इम्प्लीमेंट कराते हुए सबके सामने रखा है। जी बिल्कुल, तो वैश्विक शिक्षा को भारत तक लाने में और नए भारत की सीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए इस शिक्षा का बहुत ही बड़ा योगदान होगा। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस। थैंक यू।